Christ coming to take? क्या निशानी होगी तुम्हें यहाँ पर कि पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर तुम्हें अपने साथ लेके जाए? What is the sign that the Lord will take you? कौन सी चीज को देखेगा तुम्हारे अंदर? What will the Lord test in you? बोलो। जिसके अंदर The one पवित्र आत्मा होगा, who has the Holy Spirit. परमेश्वर चाहता है The Lord wants हम उसके किसी उपकार को ना भूलें, that we do not forget हम anything उसके that He has किसी done for उपकार us. को ना भूलें। Not forgetting anything that He has done for us. हालेलुया। Hallelujah. समझ आ रहा है आपको? Are you able to understand? और जब आप एक धन्यवादी हार्ट के होते हैं When your heart is filled with thanksgiving, तो आपके हृदय में कुड़कुड़ाहट नहीं होती, then there is no murmuring in your heart. कंप्लेन नहीं होती, There is no complaint in your heart. आपके हृदय में कोई बुराई नहीं होती, There is no evil in your heart. चिंता नहीं रहती, No anxiety in your heart. क्योंकि आप एक ही चीज बोलते हैं, Because you say just one thing. पहले भी प्रभु ने किया है, The Lord has done before. अभी भी मैं प्रभु के हाथ में हूँ I am in the hands of और the आगे Lord. भी प्रभु मुझे संभालेगा। And in the future, the Lord is going to keep me. हालेलुया। Hallelujah. आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पे डाल देते हैं। We cast all our anxieties onto the Lord. समझ रहे हैं आप? Are you able to understand? आज सुबह मैं एक डेली मन्ना पढ़ रही थी। Today I was reading the daily manna in the morning. आज का एक वर्ड जो मेरे फोन में आता है There is a word that comes in my phone every day. So today's word. और उसमें लिखा था And it said, कि दुनिया में in the world, कोई व्यक्ति any man, कितना भी तेज दिमाग का क्यों ना हो, no matter how wise and sharp he is, कितना भी तेज दिमाग क्यों ना हो, no matter how sharp he is, उसका माइंड सीमित है। the mind is still limited. अब तेज दिमाग हम कहते हैं हर प्रॉब्लम को वो हल कर लेता है Sharp mind that is able to solve anything. और हमें लगता है कि बॉय ये तो बहुत तेज है, And we start thinking that the person is ये very तो बहुत sharp, तेज दिमाग वाला व्यक्ति है। that the mind is very sharp. लेकिन उसमें था कि वो सीमित है। But the word said that it is limited. आपको चीजों को समझना होगा। You have to understand. बुद्धि अलग है, Wisdom is different. तेज दिमाग अलग है। Sharpness of mind is different. तेज दिमाग का परमेश्वर की बुद्धि से कोई भी कनेक्शन नहीं है। The wisdom of the Lord is not related to sharpness of mind. समझ आ रही है? Are you able to understand? आज बहुत सारे लोग बहुत तेज दिमाग के हैं, There are many people who have a sharp mind. बट वो कितने भी तेज बन जाएं, But no matter how sharp they are, वो सीमित है। they are limited. लेकिन परमेश्वर की बुद्धि का विस्तार But the wisdom of the Lord बड़ा है is boundless. और उसका तेज दिमाग से कोई कनेक्शन नहीं है। And it is not related to the sharpness of mind. तो हमें रोज So every day परमेश्वर के विजडम में चलना है। we have to walk in the wisdom of the Lord. और जो तेज दिमाग है And that sharpness of mind, ये हमेशा विरोधता करता है। it is rebellious. जब मैं पढ़ रही थी आज What the word I was प्रभु के reading वचन today, को, उसमें मैंने एक दो वचन भी भेजा है। वो बुद्धि से अलग है। it is different from wisdom. बुद्धि आपके हार्ट में रहती है, The wisdom is in the heart. दिमाग आप The सिर में रहता sharpness है। is in the mind. समझ रहे हैं? बाइबल में लिखा है बुद्धि का मोल
The Bible says सोने और मूंगे से भी बढ़कर है। wisdom is more valuable than choice jewels. हालेलुया। Hallelujah. हमें रोज Every day परमेश्वर के विजडम को मांगना है। we have to seek the wisdom of the Lord. प्रभु मेरा दिमाग तेज कर दे। God, sharpen my जब mind. दिमाग तेज होगा When तो आप इससे अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे, the mind is sharpened, बुरा ही होगा इससे। it will not do anything good. It will only bring forth ये evil. वाद विवाद करेगा, ये तर्क करेगा, तर्क। It will try to debate. लेकिन जब परमेश्वर की बुद्धि होगी, But if you have the wisdom of the आप Lord, प्रभु के फलों से भरे होंगे। you will be filled with the fruits of the Spirit. सुलेमान Solomon परमेश्वर की बुद्धि से भरा हुआ था। was filled with the wisdom of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु से क्या मांगना है? What will we ask of the Lord? विजडम, बुद्धि, Wisdom. प्रभु की समझ। Wisdom and understanding. हालेलुया। Hallelujah. एक वचन निकालेंगे, इफिसियों We'll read the word Ephesians 4 का 17 से हम निकालेंगे। 4 verse 17. इसलिए मैं यह कहता हूँ कि प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, The Gentiles that do not walk in the ways of the Lord. वो किससे चलते हैं? Where do they walk? अपनी मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। They walk in the futile ways of their mind. अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है। They walk in the vanity of their mind. तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, You should not walk in that same way. जैसे तुम पहले चलते थे, In the way which you walked अब before. तुम वैसे मत। आगे, क्योंकि बुद्धि अंधेरी हो गई है, Having their understanding, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. क्योंकि किनकी बुद्धि? Whose understanding? जो वचन पे चलते हैं Those who walk on the या जो word अन्य जाति है? or the Gentiles? हाँ, किनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है? Whose understanding is darkened? क्या लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जो संसार में है उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। Because of the ignorance in their heart, they have been separated समझ from रहे the हैं? Lord. जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, Those who are not walking with the Lord वो अज्ञानता में फंसे हैं, have been उनकी stuck बुद्धि अंधेरी है, in darkened उनका मन understanding. कठोर है Their hearts have been और hardened. वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। And they have been separated from the life of the God. उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं They do है। not have the life of the Lord. आगे, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं गलत कामों में लग गए हैं। हाँ, कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सब प्रकार के गंदे काम। All kinds of lewdness. ये कौन लोग हैं जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, जो अज्ञानता में भरे हैं, जो कठोर हो गए हैं? Who are these people whose the minds have been darkened and they are filled with जो ignorance? परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। Who have been separated from the life of the Lord. जब तुम ऐसे व्यक्ति को देखोगे, When you see such a man, फिर ये चीजें उसमें दिखाई देंगी। you will see such things in their वो life. सारे गंदे काम लालसा से करेंगे, They will be doing all kinds of uncleanliness, लुचपन के काम करेंगे, works of lewdness, गलत काम करेंगे। the bad things. Hallelujah. क्यों? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, Because their mind has been उनके darkened. अंदर परमेश्वर नहीं They है। do not have the life of God.
आगे पढ़ेंगे इसे आगे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। But you have not received so learned पर Christ. तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। आगे क्या लिखा है? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और उस जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। Indeed, you have heard him and have been taught by him as the truth in Jesus. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। That you put off concerning your former conduct the old man, which grows corrupt according to the deceitful lusts. हालेलुया। हालेलुया। आगे और अपने उतार डाला कि नहीं? अभी पहन रखा है। Have you removed it or you're still wearing it? बोलो। हमने पुरानी अभिलाषाएं, पुराना चाल चलन, पुराना मनुष्यत्व, भरमाने वाली अभिलाषाओं, जिससे अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, हाँ, उतार डालें। Remove your former conduct, पुरानी आदतें, पुराना चाल चलन, your former habits, पुरानी अभिलाषाएं your lusts. उतारी कि नहीं? Have you removed them? हाँ, उतार दी Have you removed कि them? अभी भी उसी के अनुसार चल रहे हैं? Or are you still walking चर्च along भी with आ them? रहे हैं और पिछली चीजें भी पहन रखी हैं। Coming to the church and still wearing those old clothes. पुराना गंदा चाल चलन भी पहन रखा है। Still wearing that, अभी भी Mute. बहुत मन में कड़वाहट और गुस्सा है। still have that anger. परमेश्वर कहता है उसको उतार डालो। The Lord says, remove it. आगे, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। And be renewed in the spirit of your mind. शारीरिक चीजें उतार के, Remove the worldly things. मैं आपको सच बता रही हूँ, I'm telling you the truth. अपने शरीर से नफरत करो। Hate your body. आज पूरी दुनिया में In the entire world, एक ही चीज सिखाई जा रही है, there is only one thing खुद taught. से प्यार करो, To love yourself. खुद से प्यार करो। To love yourself. लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ, But I'm telling you today, अपनी फ्लैश से हेट करो, hate your flesh. यही तुम्हें परमेश्वर से दूर करेगी। This will depart you from the Lord. इसको बहलाने के लिए, इसको सहलाने के लिए, To please इसके it. लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें शैतान ने There खोल is दी, much things in the world given by the devil. ताकि आपका पूरा फोकस So your entire focus आपकी बॉडी पे रहे। is on your body. आज इंसान जिम जा रहा है, The man is going to the gym, पार्लर जा रहा है, हाँ, बहुत सारे स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है। taking a lot of skin treatments. समझे? सबसे ज्यादा ध्यान किस पे है आज मनुष्य का? Where is that entire focus? परमेश्वर को छोड़कर Leaving the Lord. आज सबसे ज्यादा फोकस मनुष्य का The entire अपनी बॉडी focus पर है। of the human is on their flesh, इसी को खुश करने में लगा है। pleasing the body. पौलुस क्या कहता है? What does Paul say? मैं अपने शरीर को बहुत प्यार करता हूँ। Does he say that I love my body? हाँ? क्या बोलता है? मैं खुद को बहुत, आजकल एक नया वो आया है, अपने आप से प्यार करो। There is this new trend to love yourself. समझ रहे? पौलुस क्या कहता है? मैं रोज The Paul says, अपनी बॉडी को every day to my body, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ, I beat it and I control it ताकि so that मैं दूसरों को प्रचार करके when I preach to others, खुद निकम्मा ना ठहरूं। I should not remain useless. समझ आ रही है आपको? अरे क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि ये देखो, शैतान ने कैसे गिरा? How did हब्बा को कैसे गिरा? the devil? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। The devil tempted Eve by the lust of the eyes, the pride of the life. समझ आ रही है?
आज आपको शैतान कैसे घेरेगा? How will devil tempt you today? बोलो। जब आप परमेश्वर से बढ़कर, When you, परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर, प्रभु के प्लान से बढ़कर greater than God, greater than will of God, greater than plan of God, खुद से प्रेम करेंगे, you start loving your body, शरीर से प्रेम करेंगे, start loving your flesh, शैतान आपको घेर देगा। the devil will tempt you. समझ आ रही है आपको? Are you पर able to आज understand? ये बहुत कठोर है, ये बहुत मुश्किल है। This is very tough. समझ आ रही है? Are you understanding? पढ़े इसे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। Put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. इस कारण Therefore, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आप दिखा रहे हो मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, You're showing that you're very मैं spiritual, बहुत प्रार्थना कर रहा हूँ, that I pray a lot, बट मैं झूठ बोल रहा हूँ। but then I'm also lying. आपकी वो प्रार्थना बेकार है। Your prayer is useless. आज लोग ग्रेस के विषय में बात करना चाहते हैं, People want to talk about grace. अनुग्रह के विषय में बात करना चाहते They हैं, want to talk about grace, ब्लेसिंग के विषय में बात करना चाहते हैं, about blessing, चंगाई के विषय में बात करना चाहते about हैं, healing, पर पाप के विषय में बात नहीं करना चाहते। but not about sin. रिजल्ट के विषय में बात करना उनको पसंद नहीं। They don't like to talk about the result. जो परमेश्वर कहता है प्रार्थना करो, What the Lord says to pray, वही परमेश्वर कहता है झूठ मत बोलो, the same Lord says not to lie. वही परमेश्वर कहता है क्रोध मत करो, The same Lord says not to be वही angry. परमेश्वर कहता है लालच मत करो, The same Lord says वही not परमेश्वर कहता है व्यभिचार to मत करो। not to be adulterous. परमेश्वर कहता है तुम प्रार्थना करो, The Lord says pray, मैं तुम्हारी सुनूंगा। I will hear you. लेकिन हम कह रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, We are praying, पर हम वो बातों को इग्नोर कर रहे हैं but we are also ignoring जिससे परमेश्वर घृणा करता the है। things that the Lord hates. आप अपने पड़ोसी से झूठ बोल रहे हैं, You're lying to your neighbor. आपकी प्रार्थना से परमेश्वर खुश नहीं होने वाला। Your prayers will not be pleasing to the Lord. परमेश्वर खुश कब होता है? When the Lord will be pleased जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। when you obey His commandments. यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है The Lord said, the one who loves me वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। will obey my commands. हालेलुया। Hallelujah. इसको आगे भी पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे। We'll read it further. और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, शैतान को अवसर कब मिलता है? तुम्हारे जीवन में काम करने का। When does the devil get a place to work in your life? आप जानते हैं शैतान हर समय द्वार पे खड़ा रहता है। At all times the devil is at the door. सुनो, Listen to me. ये समझ डोर है। Imagine that this is the door अभी शैतान यहाँ खड़ा है, and the devil is standing at the door. ये आपकी लाइफ है। This is your life. अब शैतान को अंदर जाना है, And the devil wants to come inside. पर ये व्यक्ति मसीह में है, वो अंदर नहीं जा सकता। But the person is in Christ, so the devil cannot enter. अब शैतान अंदर कैसे जाएगा? How will the devil enter? हाँ, कौन सी चीज उसको अथॉरिटी देगी कि वो अंदर जाए? How will he get the authority to enter? जब यहाँ से झूठ आएगा और अंदर जाएगा, When the lie comes जब and enters, ये व्यक्ति ने झूठ बोला, and the man lies, डोर ओपन हुआ, झूठ अंदर आया, the door is opened and the lie enters. झूठ के पीछे शैतान भी उस डोर से एंटर And करेगा। the devil also sneaks in behind the lie. अब फिर शैतान खड़ा है, And now the devil is standing. अब शैतान तो अंदर आ गया, And he has entered. अब डोर ओपन ही है, And the door is open. अभी चोरी भी आएगी,
Now robbery will क्रोध come. भी आएगा, Anger will also come. अडल्ट्री भी आएगी, Adultery will also come. परमेश्वर की विरोधता भी आएगी, The rebellion towards the Lord will come. पवित्र लोगों की खिलाफत भी आएगी, The rebellion towards holy people will हर enter. बुरी चीज अब अंदर आएगी। Every wicked thing will enter. दरवाजा कैसे खुला? How did the door open? शैतान ने खोला। Did the devil open it? शैतान खोल सकता है, Can the devil open it? लेकिन कैसे खोला? But how did it जब open? आपने अपने पुराने जीवन की चीज को उठाया। When you picked up something from your previous life. झूठ किसकी ओर से है? Where is the lie coming from? शैतान की ओर से। From devil. चोरी शैतान की ओर से। Robbery is from devil. हर वो चीज जिससे प्रभु घृणा करता है, Everything that the Lord hates वो शैतान की ओर से है। is from the devil. जब उसकी चीजें When his things आपकी लाइफ में आएंगी, will enter your life, जब आज्ञा टूटेगी, when the obedience is broken, शैतान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। devil will be able to enter your life. समझ आ रही है आपको? Are you able to understand? नहीं तो देखो, अभी शैतान तुम्हारे अंदर की बातों को पढ़ नहीं सकता, The devil cannot read your inner thoughts, लेकिन वो तुम्हारे एक्शन but he can see your actions और तुम्हारे बोलने के द्वारा and your words. वो चीजों को जान जाता है। He knows things by seeing your actions and your words. हालेलुया। Hallelujah. फिर वो अपने सारे चेले चपाटों को भेज देता है, And then he sends all his disciples जाओ इसको और उकसाओ। to provoke you further. हालेलुया। Hallelujah. पर आपने But you धीरज रखना है। must remain patient. पढ़ेंगे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला, आप रिश्वत लेते थे, आप चोरी करते थे, परमेश्वर क्या कहता है? चोरी करने वाला, पहले जो करते थे अब चोरी ना करे। Let the man who stole before steal no more. हाँ, वरन भले काम करने में, अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, भले काम करने में, But rather let him labor, अपने हाथों से परिश्रम करे। working with his hands in the things which is good. इसलिए कि हाँ, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। That he may have who needs. आगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। समझ रहे? पवित्र आत्मा शोकित कब होता है तुम्हारे जीवन में? Do not grieve the Holy Spirit. When is it? तुम शैतान को अवसर देते हो। When the Holy Spirit is grieved. शैतान खुद से नहीं आता, तुम उसके लिए डोर ओपन करते हो। You open the door for the devil. समझ आ रही है आपको? Are you able to अगर understand? तुम दरवाजा बंद रखो, If you keep the door shut, वो अंदर नहीं आ सकता, he will not be able to enter. पर हम उसे अवसर देते हैं, But we give him opportunity. उसे मौका देते हैं। We give him the opportunity. और पवित्र आत्मा, And the Holy Spirit, देखो, जब हम सब कुछ जानते हैं, when we know everything, हमें वचन पता है, we know the word, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, and the Holy Spirit is with हमें us. रिजल्ट भी पता है, We know the result. उसके बाद भी And even then, हम शैतान के लिए दरवाजा खोल we दें, are opening the door for the devil. तो क्या होगा? What will happen? पवित्र आत्मा शोकित होगा। The Holy Spirit will be grieved. इसको सब कुछ पता है, The man knows everything. ऐसे पर मेरा वचन पता है, He knows my word. मेरा आत्मा इसे गाइड कर रहा है, My spirit is guiding. मेरा दास इसे गाइड कर रहा है, Man of God is guiding him. मैं वचन से बात कर रहा हूँ, I'm speaking to मैं him through word. मैं विजन में भी इसको बता रहा हूँ, I'm showing him things through मैं इसको vision. रिजल्ट भी दिखा रहा I'm हूँ। showing him the result. उसके बावजूद भी Even then, ये शैतान को कह रहा है, he's opening the door मेरे for the जीवन में आ devil, जा। inviting him into his life. अब तुम्हारे अंदर कौन बैठा है? And who is sitting in you right पवित्र now? आत्मा। The Holy Spirit. वो खुश होगा, Will he be happy? वो खुश होगा, Will he be happy? वो शोकित होगा, He will be grieved. और आप फिर भी नहीं मानोगे, And you will not be able to वो understand. तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। The Holy Spirit will leave. और अब इस व्यक्ति के जीवन में And now in this पूरा man's life, कंट्रोल शैतान का आ जाएगा। the entire control is of the devil.
आपको लगेगा अरे ये तो कल तक प्रभु में था, and you will say, oh, he was with the Lord few days back, और आप बहुत शॉक्ड होगे। and you will be shocked. लेकिन उस व्यक्ति ने But that man पवित्र आत्मा को शोकित किया has grieved the Holy Spirit, और आज and today उसने अपना पूरा कंट्रोल he has given his entire control शैतान को दे दिया। to the devil. आगे, Read further. सब प्रकार की कड़वाहट, पढ़े, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ, एक दूसरे पर हाँ, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, Do not grieve the Holy Spirit, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आप जानते हैं यीशु मसीह किसको लेने आएगा, आ रहा है। who is Christ coming to take? क्या निशानी होगी तुम्हें यहाँ पर कि पवित्र आत्मा तुम्हें परमेश्वर तुम्हें अपने साथ लेके जाए? What is the sign that the Lord will take you? कौन सी चीज को देखेगा तुम्हारे अंदर? What will the Lord test in you? बोलो, जिसके अंदर The one पवित्र आत्मा होगा, who has the Holy Spirit, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता होगा, the one who is walking in the guidance of the Holy Spirit. केवल और केवल वही व्यक्ति Only that person रैप्चर में उठाया जाएगा। will be taken in rapture. लेकिन जिन लोगों को But the people पवित्र आत्मा छोड़ के जा चुका है, who are abandoned by the Holy Spirit, वो कभी जा ही नहीं सकते। they will never know. यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा की वो छाप हमारे जीवन में है, जो छुटकारे के दिन के लिए वो छाप हमें दी गई है, पवित्र लोगों को दी गई है। क्या बोलो, पवित्र आत्मा के छुटकारे की छाप। पवित्र आत्मा के छुटकारे The की seal of salvation by the Holy Spirit. आपके हृदय में एक छाप है, वो है पवित्र आत्मा। There is a seal in your mind of the Holy Spirit. जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होगा, The one who has the Holy Spirit वही उठाया जाएगा। will be taken. और पवित्र आत्मा का चिन्ह क्या होगा, है कि नहीं? And what will be the sign that the Holy Spirit is with you? फ्रूट ऑफ स्पिरिट, Are पवित्र आत्मा के फल। the fruits of the Spirit. हालेलुया। Hallelujah. हाँ,